بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے اپنے آج کے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ ٹرولی ہمارے پاس جو بھی نالج ہے، جو بھی ہم سیکھتے ہیں، جو بھی ہمیں پتہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے بھی ہم کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں سے ہمارا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے سبجیکٹ کا، دیٹ از نیشنل انوائرمنٹل ڈفرینسز۔ جیسا کہ میں نے اپنے بالکل پہلے لیکچر کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ فرسٹ ہم نے کور کیا انٹروڈکشن کا پارٹ، اور اب اس کے بعد ہمارا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے نیشنل انوائرمنٹل ڈفرینسز کا، کہ جس کے اندر ہم کنٹریز کو کمپیئر کریں گے، دیکھیں گے کہ جب ہم انٹرنیشنل بزنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے بزنس مینیجر، ہمیں کس طرح ڈفرینٹ انوائرمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، فرسٹ آف وچ جو کہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 2 کے اندر، دیٹ از کلچر، کہ کس طرح ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمیں ڈفرینٹ کلچرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیوز اس چیپٹر میں ہیں، جو چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اس پورے چیپٹر کے اندر، اس میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کلچرز کے متعلق سمجھ سکتے ہیں، وہ کون سی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو ایز اے بزنس مینیجر ہمیں بتاتے ہیں کہ کلچر کیا ہے، کس طرح وہ افیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کلچرز کے اندر کس طرح چینجز آتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کلچرز اوور دا ایئر ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آپ نے ایک ٹائم پہ کسی کلچر کے متعلق سیکھا تھا تو اوور دا ٹائم وہ کلچر تھوڑا بہت چینج ہوگا، تو ہمیں وہ فیکٹرز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ان چینجز کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ہم پہلے سے پریڈکٹ کریں کہ کون سا کلچر چینج ہونے جا رہا ہے۔ اوبویسلی بزنس جو ہے وہ پلاننگ کے اوپر چلتا ہے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کلچرز کس طرح چینج ہوتے ہیں، تو ہم اپنی پلاننگ اس کے اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ڈسکشن ہوگی کہ کس طرح کسی ایک کلچر کے اندر جو ڈفرینٹ بیہیویئرل فیکٹرز پائے جاتے ہیں وہ بزنسز کو کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم کمپیریزن کریں گے ڈفرینٹ بیہیویئرز کا کہ کس طرح وہ بزنس کے پلاننگ کو، بزنس کی سیٹنگ کو، آپریشنل انوائرمنٹ کو کس طرح وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ ڈفرینسز جو ہیں کلچرز کے اندر یہ کمپلیکسٹی پیدا کرتے ہیں۔ اسپیشلی ان میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کمیونیکیشن کا ہے، کیونکہ ایز اے بزنس مینیجر آپ کو آل دا ٹائم کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے سپیریئرز کے ساتھ۔ سو کمیونیکیشن کس طرح اپنا پارٹ پلے کرتا ہے کلچرل کمپلیکسٹی کے اندر۔ دین ہم کچھ گائیڈ لائنس دیکھیں گے کہ جن کی مدد سے ایز اے بزنس مینیجر آپ اپنی آرگنائزیشن کو کلچرل ڈفرینسز میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ان کلچرل ڈفرینسز کو مینیج کریں گے، ان چیزوں کے متعلق ہم گائیڈ لائنس دیں گے۔ اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کس طرح ایوالو ہوتی ہیں، سو دیٹ کہ ہم اس کو لرن کر کے اس کے اکارڈنگلی ایز اے بزنس مینیجر اپنی پلاننگ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے ٹوٹل لرننگ آبجیکٹیوز ہیں۔ سب سے پہلے کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کلچر ہے کیا چیز۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ کانٹیکس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، بٹ جو چیز سیم رہتی ہے وہ یہ کہ ہر کلچر کے اندر سرٹن بلیف، سوشل نارمز اور ریلیجیس فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکسٹ بک کی بات کریں تو آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر جو کلچر کو ڈیفائن کیا گیا ہے دیٹ از لرن نارمز بیسڈ آن دا ویلیوز، ایٹیٹیوڈز اینڈ بلیفس آف اے گروپ آف پیپل۔ سو اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو آپ کا کلچر جو ہے وہ کمبینیشن ہے، آپ کا کلچر کمبینیشن ہے ڈفرینٹ فیکٹرز کا۔
जिसके अंदर आपके बिलीव्स आ जाते हैं, आपकी लैंग्वेज आ जाती है, कस्टम्स एंड रिचुअल्स, आपके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, और फिर आपका रिलीजन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कल्चर को फॉर्मुलेट करते हैं। इन फैक्टर्स के दरमियान डिस्टिंक्शन जरूरी है, क्योंकि कल्चर आपको तब समझ में आएगा जब आप कल्चर के इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हैं क्या। तो बिलीव्स बेसिकली वो आर द वेज वी परसीव थिंग्स। हम किस तरह राइट को रॉन्ग से डिस्टिंक्ट करते हैं, हम किस तरह समझते हैं कि हमें किसी गिवन सिचुएशन के अंदर किस तरह रिएक्ट करना है, वो हमारे बिलीव्स हैं। लैंग्वेज ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी मोड ऑफ लर्निंग भी है और हमारा एक्सप्रेशन भी है। हम इसी के ज़रिए एक दूसरे के साथ अपनी सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, और जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो इसी के ज़रिए हम एक दूसरे से सर्टन एलिमेंट सीखते हैं। कस्टम्स हमारी सेट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करती हैं। ये सेट वैल्यूज़ ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड किसी एक सर्टन जगह पर रहने से बनती हैं, जब हम वहाँ के रिचुअल्स को अपनाते हैं। और रिचुअल्स जो होते हैं वो हमारी सर्टन सेरेमनीज को परफॉर्म करने के तरीक़ाकार होते हैं। हमारी शादी ब्याह किस तरह होगी, हमारी इबादत किस तरह होगी, हम किस तरह एक दूसरे के साथ मिलें जुलेंगे, ये सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे। और इन तमाम चीज़ों से ये बिलीव्स, ये हमारे रिचुअल्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे कस्टम, ये हमारे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को फॉर्मुलेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि बिहेवियर हमारे एक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं और एटीट्यूड्स जो हैं वो हमारे पैसिव रिस्पॉन्सेज हैं। यानी कि हम किसी एक गिवन सिचुएशन में हम क्या फील कर रहे हैं वो हमारे एटीट्यूड्स हैं, और हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारे बिहेवियर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बंदा जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, वो आके आपको आपकी सक्सेस की के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, मुबारकबाद देता है, तो इन द माइंड यू डिसलाइक द पर्सन, दैट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड द पर्सन। बट वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, दैट इज योर बिहेवियर, योर एक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड्स बनते हैं। इनको अभी थोड़ी देर में मैं मज़ीद एलेबोरेट करूंगा कि किस तरह ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने कल्चर के मतलब देखा था। बेसिकली कल्चर, सॉरी टू से कल्चर नहीं बल्कि बिजनेस किस तरह ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं, किस तरह बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, और इन रिटर्न ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है, और उसी इम्पैक्ट में एक इम्पैक्ट आपके कल्चरल फैक्टर्स का आ जाता है। ठीक है जी, तो आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का एक लाजमी जुज होता है कल्चरल फैक्टर, और वो कल्चरल फैक्टर ऑब्वियसली आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को, और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन टर्न आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपकी स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। सो अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो कल्चर क्यों ज़रूरी है, थोड़ा इसको मज़ीद एलेबोरेट कर रहा हूँ स्लाइड के अंदर, कि कल्चर की अगर बात की जाए तो देयर इज़ अ सेइंग, इफ़ यू गेट द कल्चर राइट मोस्ट ऑफ द अदर स्टफ विल जस्ट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ, तो अगर आप उनके कल्चर को सही अंडरस्टैंड करके सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन स्मूथ चलती हैं। अगर आपने बाकी फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को या पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स को थोड़ा निगलेक्ट भी कर दिया है, लेकिन आपने कल्चर्स को सही रिप्रेजेंट किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम चल जाता है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती हैं। वाई? क्योंकि कल्चर हमारे इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, हमारा पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। तो वो अगर आपने कल्चर को ही गलत परसीव किया है तो आप उसको ग्रीट ही गलत तरीके से कर रहे हैं। आपका आपको देखना पड़ेगा कि जो बंदा आपसे मिलने आ रहा है, आप उसे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो कहीं वो एजिटेट तो नहीं हो रहा,
ٹھیک ہے. سو اگر وہ کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے جہاں پہ اسلام کو انفارچونیٹلی نیگیٹولی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور آپ غلطی سے ایز اے پریکٹس کیونکہ اپنے کلچر کے اندر آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر آپ کو عادت ہے السلام علیکم کہنے کی اور آپ اس کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے پہلے ہی انٹریکشن کے اوپر اس کو ایجیٹیٹ کر دیا ہے. ناؤ اٹ وڈ بی ویری ویری ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اس کو اپنی بات منوا سکیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے اگین پہلے لیکچر کی ایگزامپل دوں تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اپنی ہی پرسنل ایم سی بی کی ٹریننگ کے دوران ہم نے پوچھا تھا کہ کس بیسس کے اوپر ایچ آر کے لوگوں کو انٹرویو میں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ فرسٹ رسپانس کہ کس طرح پرسن اندر آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اسی طرح جب آپ انٹرنیشنل بزنس انوائرمنٹ کے اندر ٹرانزیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح دوسرے بندے سے انٹریکٹ کیا وہ فرسٹ رسپانس آپ کا اس کا مائنڈ سیٹ بنا دیتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سو ان مائنڈ سیٹ کو بعد میں چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو کلچر آبویسلی ایک انٹیگرل پارٹ ہے کسی بھی کنٹری کسی بھی نیشن کے آپریٹنگ انوائرمنٹ کا. تو اس انٹیگرل پارٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہوگا اگر آپ سکسیزفلی انٹرنیشنل بزنس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی کلچر کو سمجھنا اور اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل کس لیے ہوتا ہے؟ دا پیپل فیکٹر. کوئی بھی کلچر آپ اگر انڈرسٹینڈ کر بھی کہیں کہ کسی سرٹن کنٹری کا ایک نارمل کلچر کیا ہے پھر بھی وہاں پہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں وہ اس نارمل کلچر سے ڈیویٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی ہی ایگزامپل لیں تو آپ کی کلاس کے اندر آپ کے کلاس فیلوز تقریباً ایک جیسے کلچر کا حصہ ہیں. آپ لوگ تقریباً ایک جیسے ایریا سے بلونگ کر رہے ہو. پنجاب آپ کا ایک کامن پروونس ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ سٹی اور ولیج ایریا کے لوگوں کا کلچر تھوڑا بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور ایون وہ تمام لوگ جو ولیج سے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا بھی بیہیویئر ان کے نارمس ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈفرینس پایا جاتا ہے. پھر اگر آپ اس کے اندر کسی دوسرے صوبے کا بندہ ایڈ کر لیں گے تو وہ مزید ڈفرینس آ جائے گا. تو لوگ ایون ود ان سیم نیشنل کلچر ہر لوگوں کا مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. سم ٹائمس کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو آل ٹوگیدر اس نارمل کلچر سے ہٹ کے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کی پرسنل جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی ایک کلچر کو پرڈکٹ کرنا اور اس کلچر کے اکارڈنگلی بیہیو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آل بیٹ کہ یہ مشکل ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریوارڈنگ ہے. کلچرل ڈائیورسٹی آپ کے بزنس کے لیے اچھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ڈفرینٹ کلچر سے لوگ آتے ہیں تو وہ پرابلمس کے ڈفرینٹ سولوشن آپ کو دیتے ہیں. وہ ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اس لیے ڈفرینٹ طریقے سے وہ چیزوں کو الیبریٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے. سو جب آپ ٹیم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ڈفرینٹ انپٹس دیں گے اور وہ ڈفرینٹ انپٹس آپ کو بیٹر بزنس ڈیسیژن لینے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. بٹ یو ہیو ٹو کیپ اٹ مائنڈ کہ کلچرل کولیژن بہت بری چیز ہے. جب مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آ رہے ہیں تو دیر از اے چانس کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے کلچر ایک دوسرے سے بہت زیادہ کولائڈ کر رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو رزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کی بات کریں تو اگر کوئی دو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مائنڈ کے اندر وہ پنجابی اور سندھی کا مسئلہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑائی جھگڑے میں ہی رہیں گے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو کلچرل سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈفرینٹ کلچرل نارمس جو ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو ریئیکٹ کر سکتی ہیں اینڈ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی. سو اگر آپ کے گروپ کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے لیے ان کے علاقائی ڈفرینسز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یو ہیو ٹو کیپ دیم سیپریٹ. یو ہیو ٹو کیپ دیم ان
चेक। तो कल्चरल अवेयरनेस नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, दैट इज अबाउट कल्चरल अवेयरनेस। आप किस तरह कल्चर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, आप किस तरह परसीव कर सकते हैं कि कल्चर किस तरह बनता है, कौन से फैक्टर्स हैं उन कल्चर को इफेक्ट कर रहे, किस तरह कल्चर्स डिफरेंट कंट्रीज के डिफर कर रहे हैं, ये चीज़ें कल्चरल अवेयरनेस का हिस्सा हैं। और ये बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स के लिए कि वो कल्चरली अवेयर हों जहाँ जहाँ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अदरवाइज देर आर चांसेस ऑफ फेलियर। तो कल्चरल अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो हर कल्चर के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि पाए जाते हैं, डिफरेंट रूटीन्स हैं जो हर कल्चर का हिस्सा है। ग्रीट किस तरह किया जाता है वो हर कल्चर का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हर कल्चर में डिफरेंट है। कहीं पे आप हैंड शेक करके ग्रीट करते हैं, कहीं पे आप गले मिल के ग्रीट करते हैं, कहीं पे आप फासला रख के ग्रीट करते हैं। तो ग्रीट करने का तरीका हर कल्चर का मुख्तलिफ है। इसी तरह मीटिंग के एंड पे एक दूसरे को गुड बाय कहने का तरीका हर किसी का मुख्तलिफ होगा। आप एक दूसरे को एक्सप्रेशंस किस तरह दे रहे हैं वो एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं। हर कल्चर के अंदर सेम एक्सप्रेशन नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल थंब अप आप करते हैं तो हो सकता है आपके कल्चर के अंदर थंब अप करना एक अच्छा साइन है कि यस इट इज गुड, और किसी और कल्चर के अंदर थंब अप करना हो सकता है वो नेगेटिव समझा जाता हो। सो हर कल्चर का हिस्सा है एक्सप्रेशन देना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, सोशल इंटरेक्शन रखना, ये हर कल्चर का हिस्सा है। लेकिन हर कल्चर के अंदर वो मुख्तलिफ होता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि आपको अवेयर होना चाहिए कि कौन से कल्चर के अंदर किस चीज़ को नेगेटिवली लिया जाता है, किस चीज़ को पॉजिटिवली लिया जाता है, ताकि जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फॉरेन काउंटर पार्ट के साथ तो आप उसी तरह इंटरेक्ट करें जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हर कल्चर के लोग जो हैं वो गिवन सिचुएशन के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके रिस्पॉन्स उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली होंगे। अगर आप उनके कल्चर से हट के अपने कल्चर के मुताबिक वहां पे रिस्पॉन्स दे रहे होंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि वो इसको नेगेटिवली लें, वो इससे एजिटेट हो जाएं, वो आपके साथ अपना इंटरेक्शन ना रखें। सो बिजनेस रिलेशनशिप समटाइम्स सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप दूसरे के कल्चर को किस हद तक और कितनी वैल्यू देते हो। अब इन कल्चर्स को समझने में, सीखने में सर्टेन प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वो ये है कि कोई एक मेथड अवेलेबल नहीं है आपके पास कि जिसके ज़रिए आप सीख सकें। देयर इज़ नो मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपको बता सके कि हाँ दिस विल बी इक्वल टू दैट एंड दैट विल इंश्योर कि इस तरह कल्चर रिएक्ट करेगा। तो देयर इज नो फूल प्रूफ मेथड जिसके जरिए आप सीख सकें कि कल्चर्स किस तरह डिफर करते हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि किसी एक कल्चर के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग को समझ अ, समझने के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। जैसा कि लोगों का सबकॉन्शियस रिएक्शन है, जाहिर बात है सबकॉन्शियस रिएक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इवन विद इन अ कल्चर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर कोई एक गिवन सिचुएशन के अंदर सिमिलर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि आप ही की क्लास के अंदर आप जाके कोई बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दें और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब सब लोग उसके ऊपर बड़ा शॉकिंग रिएक्शन देंगे कि अच्छा ये भी हो गया। लेकिन क्वाइट पॉसिबल के वहीं पे दो लोग ऐसे हैं जो कि तो क्या हुआ। ठीक है, सो रिएक्शन जो है गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी एक
सोशल ग्रुप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सोशल सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी एक क्लास के अंदर छोटे छोटे आपके ग्रुप्स होते हैं ना, कोई 4 का ग्रुप है, कोई 2 का ग्रुप है, कोई 3 का ग्रुप है, वो ग्रुप्स भी सर्टन फैक्टर्स के ऊपर बनते हैं। उसी तरह किसी एक कल्चर के अंदर अगर हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो ग्रुप्स रेशियल हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोविंशियल हो सकते हैं, पंजाबी सिंधी की बेसिस के ऊपर वो ग्रुपिंग है, वो लैंग्वेज की बेस पे हो सकते हैं, पंजाबी सराइकी का डिफरेंस। सो इस तरह के डिफरेंट सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर प्रॉब्लम ये है कल्चर्स को समझने के अंदर के जो एक्सपर्ट्स हैं कल्चर्स को के, जो कल्चर्स को डिफाइन करते हैं, कल्चर्स को स्टडी करते हैं, कल्चर्स के मतलब रिसर्च करते हैं, वो तमाम एक्सपर्ट्स ये तो एग्री करते हैं कि कल्चर्स डिफर करते हैं, कल्चर्स के अंदर डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन वो डिफरेंस है क्या उसके अंदर कोई एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जाहिर गल है चूंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कल्चरल डिफरेंस के मतलब डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका मौजूद नहीं है जिससे हम समझ सकें कि कल्चर्स के अंदर डिफरेंसेस किस तरह के हैं। कल्चर को जब आप सीख रहे हैं तो किसी कल्चर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेने के डिफरेंट तरीक़ेकार आपके पास मौजूद होते हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए आप कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अंदर कल्चरल रिसर्च आ जाती है, एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक तरीक़ाकार किसी कल्चर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। वो रिसर्च हो सकता है आप खुद कंडक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा वैलिड होंगे। लेकिन अगर आपको क्विकली किसी कल्चर के मुतल्लिक नो हाउ चाहिए तो टूरिज्म उसका एक अच्छी ऑप्शन है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं कल्चर को सीखने के लिए, फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं और फिर आप उन्हें कहते हैं जी कि आप वापसी के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कंपनी के अंदर। बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जी हमारी कंपनी ने हमें फॉरेन ट्रिप के ऊपर भेज दिया, और एट द सेम टाइम आपकी कंपनी कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती है उनके उस एक्सपीरियंस से। देन देर आर सर्टन गाइड बुक्स जो कि प्रोफेशनल टूरिस्ट जो हैं वो कल्चर्स के मुतल्लिक लिखते हैं। इंटरनेशनली ऐसी गाइड बुक्स मिल जाती हैं, आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो कि कल्चर्स के मुतल्लिक आपको एक ब्रीफ समराइज ओवरव्यू दे रही होती हैं। ये क्विक वे होता है कल्चर्स को सीखने का। देन आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप कल्चरली डिफरेंट लोगों से मिलते जुलते हैं और आप उसके बेसिस के ऊपर सर्टन चीज़ें सीखते हैं। सो ये डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए, डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किसी दूसरे कल्चर के मुतल्लिक जब आपने कोई भी डिसीजन लेना हो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक। लेकिन ये तमाम अगेन जैसे पहले कहा देयर इज़ नो फूल प्रूफ मेथड। तो ये भी तरीक़ाकार जो हैं डिफरेंट, इनमें अपने अपने प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप टूरिज्म या गाइड बुक्स या पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर कल्चर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर बात है लोग क्या कहते हैं किसी कल्चर के मुतल्लिक, वो एक रिस्की चीज़ है अगर आप सिर्फ उसकी बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे हैं किसी कल्चर को। क्यों? क्योंकि जिस किसी ने उस कल्चर को एक्सपीरियंस किया है और आके आपको डिफाइन किया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके अपने पर्सनल बायसेस, उसके अपने एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन, वो सब अपना पार्ट प्ले कर रही है। सो बेसिकली जब आप किसी के बताए हुए के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि आप एक्चुअल कल्चर को रियलाइज नहीं कर रहे, बल्कि उस परसेप्शन को रियलाइज कर रही हैं जो उस बताने वाले पर्सन ने उस कल्चर में रहते हुए या वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से सीखी है।
तो क्वाइट पॉसिबल कि जब आप किसी गाइड बुक से या किसी टूरिस्ट के रिव्यू से किसी कल्चर के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, आप बेसिकली उस कल्चर को नहीं समझ रहे बल्कि उस बताने वाले की परसेप्शन को जज कर रहे हैं। इसी तरह रिसर्च ऑल्दो जो है वो एक सेफ टूल है किसी कल्चर के मुताबिक इंफॉर्मेशन लेने का, लेकिन पहली प्रॉब्लम तो कल्चरल रिसर्च के अंदर ये है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी। और दूसरा ये भी कि रिसर्चर्स जो हैं वो जो आपको रिजल्ट्स देंगे वो उन रिजल्ट्स को एवरेज आउट करके देंगे। सारी बात है वो सैम्पलिंग की बेसिस के ऊपर इन्फ्रेंसेस निकालेंगे और वो इन्फ्रेंसेस एक एवरेज आउट रिजल्ट होगा ओवरऑल रिस्पॉन्स का। अब एवरेज आउट रिजल्ट में यू कैन नॉट से कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से आप डीलिंग करने जा रहे हैं वो उसका एटीट्यूड उसका बिहेवियर उस एवरेज के मुताबिक है या नहीं है। वो एवरेज ये तो बता रही है कि ओवरऑल ये नेशन यहाँ के लोग इस तरह का नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि जिस बंदे से जिस काउंटर पार्ट से जिस मैनेजर से आप डीलिंग करने जा रहे हैं वो उस एवरेज से डिविएट करता हो। सो यस, कल्चरल रिसर्च जो है वो एक आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर देती है, सब्सटेंशियल रिजल्ट देती है, लेकिन उन रिजल्ट्स को आप हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। फिर एक और प्रॉब्लम के कल्चर जो हैं वो ओवर द टाइम इवॉल्व होते हैं, वो एक जैसे नहीं रहते। नई चीज़ें वहाँ के लोग सीखते हैं और वो नई चीज़ें जो हैं उनके कल्चर का पार्ट बन जाती हैं। तो आपकी रिसर्चेस जो हैं आपकी गाइड बुक्स जो हैं समटाइम्स वो आउटडेटेड होती हैं। जब आप पहले से की हुई किसी रिसर्च को उठा के कल्चर को समझने की कोशिश करते हो या कोई पहले से लिखी हुई गाइड बुक की बेसिस के ऊपर कल्चर को समझते हो तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अब उस कल्चर का हिस्सा ना हो या वो चेंज हो गई हो। इन सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर जब आप कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक रिलायबल पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेशनल कल्चर का होता है। नेशनल कल्चर जो होता है वो किसी सोसाइटी को डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है। उसकी वजह यह है कि जाहिर बात है किसी एक जगह पे इकट्ठे रहने की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों के बिहेवियर्स लोगों के एटीट्यूड्स तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते बन जाते हैं। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि इंडिया और पाकिस्तान ऑल दो के दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दो डिफरेंट नेशंस हैं, लेकिन यहाँ यहाँ के पंजाब के लोगों के और वहाँ के पंजाब के लोगों के जो रस्म व रिवाज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उनके एटीट्यूड तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं, ऑल बीट के यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ पे मेजोरिटी सिख पॉपुलेशन है। इसके बावजूद वो एक जैसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि लैंग्वेज सेम है और ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जब लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं तो उनके जो रस्म रिवाज हैं वो तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते बन गए हैं। तो इस वजह से एक नेशनल बाउंड्री में रहने वाले लोग जो हैं उनके बिहेवियर्स उनके जो नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस एंड स्पेशली वो तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। पर्सनल बिहेवियर पर्सनल एटीट्यूड शायद डिफर करते हैं वो लोगों के, लेकिन जो ओवरऑल एक एटीट्यूड होता है या उनकी नॉर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, सो यू वॉन्ट एक्सपेक्ट कि आप पाकिस्तान के अंदर जाके किसी से ग्रीट करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और वो जनाब आगे से हाथ जोड़ के आपको नमस्ते कर रहा है। ठीक है, इट्स अ रेयर इंस्टेंस के पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो। इवन पाकिस्तान के हिंदूज जो हैं वो भी हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करेंगे बल्कि वो आगे आके आपसे हैंड शेक करेंगे। ठीक है, तो लोगों का जो ओवरऑल एक अटायर है वो एक जैसा होगा। आपको सिर्फ जज करने की जरूरत होगी उस नेशनल कल्चर के विद इन कि लोगों के पर्सनल बिहेवियर्स उनकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। इवन कंट्री टू कंट्री जो कल्चर है उसको डिफाइन करने में मैनेजर्स को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
आती है, उसकी मेन रीजन एक सब कल्चर्स हैं। किसी भी कल्चर के सब कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी डिफाइन किया कि जिस तरह पाकिस्तान का एक नेशनल कल्चर है, उसके विद इन हमारे छोटे छोटे सब कल्चर्स पाए जाते हैं, जो कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, इनके मुख्तलिफ सब कल्चर्स हैं। इवन विद इन पंजाब अगर आप बात करेंगे तो कास्ट वाइज कल्चर्स डिफर हो जाएंगे, फैमिली वाइज डिफर हो जाएंगे। विद इन पंजाब अर्बन सिटीज का कल्चर कुछ और होगा, रूरल एरियाज का कल्चर कुछ और होगा। तो ये जो सब कल्चर्स हैं वो जरा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको डिफाइन करने में कि आपने किस तरह अगले से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह समटाइम्स ये होता है कि किसी एक कंट्री के रहने वाले लोग जो हैं वो ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो वो उनके सर्टन टेक्स्ट को, उनके सर्टन कल्चरल फैक्टर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जनाब एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो लोग जनाब बड़े इस्लामी वे में आपसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ के रहने वाले लोग या जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो शायद यूरोप अमेरिका में बहुत ज़्यादा आता जाता है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें उनकी अडॉप्ट कर ली हैं। ठीक है, सो क्वाइट पॉसिबल कि आप जा रहे हैं कि जनाब काउंटर मैनेजर जो है वो एक मुस्लिम कंट्री की फीमेल खातून है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जनाब वो दुपट्टा लिए हुए, चादर लिए हुए आपको ग्रीट करेगी, और आप आगे जाते हैं और जनाब आपको पेंट शर्ट में मलबूस एक बिल्कुल यूरोपियन ट्रेंड के ऊपर एक बिजनेस मैनेजर फीमेल मिलती हैं। दिस इज अ शॉक फॉर यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बेशक वो इस्लामिक सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन एज अ बिजनेस मैनेजर वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर रही है। इस वजह से उसने थोड़ी बहुत चीज़ें वो ऑप्ट कर रही हैं, और शायद आप चूंकि यूरोपियन बैकग्राउंड से आ रहे थे और वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, इस वजह से उसने आपके कल्चर को शायद मैच कर लिया। सो इस तरह की चीज़ों की वजह से समटाइम्स आपको डिफिकल्टी आती है किसी एक कल्चर को डिफाइन करने में और उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स सेट करने में। बट रिमेंबर दैट आपका कोई भी रिस्पॉन्स हो, आप कल्चर को कितना ही अच्छा स्टडी कर लें, आपका रिस्पॉन्स रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ डिविएशन। देन कल्चर्स किस तरह फॉर्मुलेट होते हैं और किस तरह उन कल्चर्स के अंदर चेंजेस आती हैं, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको डिफाइन करने में एक स्टेप फॉरवर्ड। सारी बात है, जब हमें पता होगा कि कल्चर्स फॉर्मुलेट किस तरह होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो हम उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके ये देख सकते हैं कि किस तरह कल्चर्स चेंज होंगे, सो दैट कि जब हम अपने बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पता हो कि किन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से कल्चर के अंदर किस किस्म की चेंज आ सकती है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि जब आप अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के दौरान सर्टन फैक्टर्स चेंज हो जाएं, जिसकी वजह से जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उन फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत होती है। उसमें से सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कल्चर की फॉर्मेशन का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्चर को फॉर्मुलेट करते हैं, या आसान जुबान में कहूँ तो कल्चर बनता कैसे है। उसके अंदर सबसे पहले 5 फैक्टर्स हैं: लैंग्वेज, कस्टम्स, रिचुअल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीजन, एंड देन आर्ट्स एंड लिटरेचर। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि अपना पार्ट प्ले करते हैं और ये आपके बिलीव्स बनाते हैं। इन 5 फैक्टर्स से बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे बिलीव्स बनते हैं। अगेन, अगर आपको बिल्कुल पहले वाली स्लाइड याद हो जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था कल्चर का, कि कल्चर जो है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनता है। सो अब मैं उन चीज़ों का आपस का सिर्फ इंट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ।
कि आपके बिलीव्स जो हैं वो बेसिकली आपका रिलीजन डिफाइन करेगा कि आपके राइट्स एंड रॉन्ग्स क्या हैं, आपकी लैंग्वेज, सारी बात है लैंग्वेज की मदद से आप अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से चीज़ें सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीखते हैं, अपने दोस्तों से चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें आपकी बिलीव्स का हिस्सा बनती हैं। देन आपके कस्टम्स, आपके रिचुअल्स आपको सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ आपके बिलीव्स का हिस्सा बनता है। और फिर जब आप थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस गेन करते हैं, थोड़ा बहुत खुद से चीज़ों को एनालाइज करने की एबिलिटी आपके अंदर आती है, तो आप जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो मवाद आप लिटरेचर का पढ़ते हैं, वो आपके पहले से सेट बिलीव्स को इफेक्ट करता है, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस लेके आता है। हो सकता है आपकी सोसाइटी ने आपको बताया था कि जनाब एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर इस तरह से आपने एक्ट करना है। हो सकता है आपको बताया गया था कि नहीं भाई फलां किस्म के लोगों के साथ आपने मेलजोल नहीं रखना, ठीक है। लेकिन जब आपने खुद से आर्ट एंड लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया तो वहां से आपने सीखा कि नहीं, इंसानियत भी किसी चीज का नाम होती है, हमें उनसे इंटरेक्ट करने की जरूरत है। तो इस तरह आपका पहले से सेट बिलीफ जो है वो चेंज होते हैं। सो ये 5 के 5 फैक्टर्स जो हैं वो आपके बिलीव्स को फॉर्मुलेट करते हैं और आपके बिलीव्स इन टर्न जो हैं वो आपके बिहेवियर्स और आपके एटीट्यूड्स को डिफाइन करते हैं। मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि बिहेवियर्स जो हैं वो आपके पैसिव रिएक्शंस हैं और एटीट्यूड्स आपके एक्टिव रिएक्शंस हैं गिवन सिचुएशंस के अंदर। अब ये तीनों चीजें मिलके आपके बिहेवियर्स, आपका बिलीफ एंड आपके एटीट्यूड्स, ये तीनों मिलके आपकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपके वैल्यूज बेसिकली वो चीजें हैं जो ओवर अ लॉन्ग टर्म चलती हैं और किसी एक कम्युनिटी की जो शेयर्ड वैल्यूज होती हैं वो जब एक लॉन्ग पीरियड के लिए प्रैक्टिस की जाती हैं तो वो वैल्यूज बेसिकली नॉर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्म्स हैं ये बेसिकली कल्चर बनता है हमारा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत याद कराऊँ, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो कल्चर को डिफाइन किया गया है वहां भी यही बात की गई है, लर्नड नॉर्म्स based on the values, attitudes and beliefs of a group of people, ठीक है। तो आपकी लर्नड नॉर्म्स जो हैं किस चीज की बेसिस के ऊपर, आपकी वैल्यूज के ऊपर, आपके एटीट्यूड्स के ऊपर और आपके बिलीव्स के ऊपर, ये बेसिकली आपका कल्चर होता है, ठीक है जी। आई होप के इससे आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी हो कि कल्चर बनता कैसे है। सो जो हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे हैं, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स देखे हैं जो कि कल्चर को इफेक्ट करते हैं। जाहिर बात है उन सबको यहाँ पे कवर करना ना तो हमारा मेन कंसर्न कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, जाहिर बात है ये सोशल स्टडीज का पार्ट है, वहाँ पे कवर होता है। हमारा जो यहाँ पे फोकस है या टारगेट है वो कल्चर को इस हद तक अंडरस्टैंड करना है कि हम अपने बिजनेस डिसीजन लेने में एफिशिएंट बन जाए। तो उस काम के लिए हम सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे। उसके अंदर लैंग्वेज आ जाता है आपका, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी लिखा था इन्हीं स्लाइड्स के अंदर कि लैंग्वेज आपका प्राइमरी वे है जिसके जरिए आप कल्चर को सीखते हैं और दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो सारी बात है कल लैंग्वेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लैंग्वेज ही वो चीज़ है जिसकी मदद से आप किसी दूसरे कल्चर के कंपोनेंट्स को रिसीव करते हैं। वो किस लिए कि जब आपने उर्दू के बाद इंग्लिश सीखी और इंग्लिश सीखने के बाद जब आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे, आप इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ेंगे, आप स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वहां से बेसिकली आप कल्चर उनका ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें उनके कल्चर की आप ऑप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से लैंग्वेज जो है वो दो तरह के तरह किसी कल्चर के अंदर अपना रोल प्ले करता है।
वो डिफ्यूजर भी है बैक वक्त, और वो स्टेबलाइजर भी है। डिफ्यूजर उस चीज को कहेंगे जो किसी कल्चर के अंदर किसी नए कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और स्टेबलाइजर उस चीज को कहेंगे जो किसी एक कल्चर की सेट नॉर्म्स को एक लॉन्गर पीरियड तक कैरी करता है। तो बेसिकली आपकी लैंग्वेज ये होती है जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को महफूज रखती है, और जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी कल्चरल वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका रिलीजन आ जाता है। रिलीजन जो है वो किसी भी कल्चर को डिफाइन करता है, कल्चर के जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उनको डिफाइन करता है। और रिलीजन एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो कि आपकी वैल्यूज को स्ट्रेंथन करता है। सम ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के लिए पॉइंट ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज पे समटाइम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि जी हाँ जी, हमने तरक्की करनी है, हमने जनाब दुनिया के साथ मिलके चलना है, तो यस इंग्लिश सीखना सिखाना बहुत ज़रूरी है। सो आप लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज शायद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कभी भी अपने रिलीजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, तो रिलीजन किसी भी कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिसको आप ना तो चेंज कर सकते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि उस रिलीजन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं उस कल्चर के ऊपर, ताकि आप अपने बिजनेस डिसीजन को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकें। देन सोशल इंटरेक्शन आपका जो है, इसके अंदर आपके बेसिकली जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी ट्रेडिशंस हैं वो आ जाती हैं। आपकी कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से आपका कल्चर जो है वो डिफ्यूज होता है। कल्चरल डिफ्यूजन बेसिकली कहते हैं एक ऐसे इंस्टेंस को कि जहाँ पे किसी दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से आपके कल्चर के अंदर नई चीज़ें डिवेल्प हो रही हैं। ये नई चीज़ें आपके कल्चर को ज़्यादा एनरिच करती हैं। दैट मीन्स कि आपके कल्चर के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके कल्चरल की आइडेंटिटी को भी इफेक्ट कर रही होती हैं। देन आपके सोशल इंटरेक्शन की वजह से एक और फैक्टर बनता है क्रायोलाइजेशन का। क्रायोलाइजेशन बेसिक नेक्स्ट स्टेज है कल्चरल डिफ्यूजन की। तो कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से नए कंपोनेंट आपके कल्चर का हिस्सा बनते हैं, और जब ये एक लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से एक नया कल्चर बन जाता है। एक ऐसा कल्चर ना तो आपके पुराने कल्चर जैसा है, ना ही टोटली वो उस कल्चर जैसा है जिससे आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान के पर्टिकुलरली एलीट कल्चर की बात करें, या जो हमारे अर्बन एरियाज का कल्चर है, तो ये कल्चर ना तो प्योरली इस्लामिक है, सारी बात है, ओवर द टाइम उन्होंने इस्लामिक नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा छोड़ा है इस्लाम से दूरी की वजह से, ना ही वो प्योरली यूरोपियन है। ठीक है, ना वो बिल्कुल यूरोपियन जैसी आज़ादी है वहाँ पे, और ना ही वो इस्लामिक नॉर्म्स वाली या ईस्टर्न कल्चर वाली पाबंदियां हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो ये एक मिक्स, एक थर्ड कल्चर है। सो दिस इज क्रायोलाइजेशन, कि ओवर द टाइम जब आप किसी दूसरे कल्चर के कंपोनेंट्स को अपने कल्चर का हिस्सा बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कल्चर इतना सिग्निफिकेंटली डिफर कर जाता है कि ना तो वो कल्चर ए का हिस्सा रहा, ना वो कल्चर बी का हिस्सा रहा, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट अलहदा कल्चर बन जाता है। सो कल्चर के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस दो तरीके से किसी भी कल्चर के अंदर आती हैं, चेंज बाय चॉइस या चेंज बाय इम्पोजिशन। दैट इज
کہ چینج بائی چوائس ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے دوسرے کلچر کے ایلیمنٹس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خود سے ان کو ریسیو کر رہے ہیں، کوئی آپ ان کو امپوز نہیں کر رہا. آن دا ادر ہینڈ چینج بائی امپوزیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے دوسرے کلچر کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. چینج بائی چوائس نارملی آتی ہے ایجوکیشن کے ذریعے، آرٹس اینڈ لٹریچر کے ذریعے، پیپل کے انٹریکشن کی وجہ سے، کہ جب آپ دوسرے کلچر کے آرٹس اینڈ لٹریچر کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، اسپیسیفکلی کسی دوسری لینگویج کو جب آپ آپٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے کلچر کے اندر چینج آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی چینج بائی چوائس ہے. کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا، بلکہ آپ خود سے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خود سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم اس کو بھی لے کے چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چینج بائی چوائس ہے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ چینج بائی امپوزیشن ہے موسٹلی ان دا ہسٹری یہ ہوتی رہی ہے کہ جب کوئی کنٹری کسی دوسری کنٹری کو کانکور کرتی تھی تو وہ وہاں پہ اپنے کلچر کے سرٹن چیزوں کو امپوز کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ایک امپوزڈ کلچرل چینج آیا کرتے تھے. اب یہی چیز جو ہے وہ ملٹی نیشنل انٹرپرائز کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے جناب وہ کارپوریٹوکریسی کے ٹرم سنی ہو. ٹھیک ہے. دا نیو ورلڈ آرڈر تھیوری اگر آپ نے پڑھی ہے تو لارج کمپنیز جو ہیں وہ بھی یہی چیز کر رہی ہیں. وہ بھی کلچر امپوز کرتی ہیں دوسرے کنٹریز کے اندر بہت اسمال فیکٹرز کی مدد سے. فار ایگزامپل جہاں پہ جائیں گے اپنے امپلائیز کو فورس کریں گے کہ وہ اپنی ٹائمنگ کو چینج کریں، وہ سرٹن جو اپنے سوشل انٹریکشن ہے اس کو چینج کریں. آپ کو عادت ہے جناب کہ آپ آفس میں جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لنچز کیا کرتے تھے، جبکہ کمپنی آپ کو فورس کر رہی ہے کہ نہیں جی آپ اپنے کیبن میں بیٹھ کے ہی 9 to 5 جاب کریں گے. اگر آپ نے لنچ کرنا ہے تو آپ وہیں اپنے کیبن کے اندر 15-20 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں، گروپس کے اندر لنچ نہیں کرنا. تو اس طرح بیسیکلی آپ کے کلچر کو تھوڑا بہت چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چینج بائی فورس ہو رہی ہوتی ہے. So this was all from my side for now. ٹھیک ہے. ابھی that doesn't mean کہ ہم کلچر کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. ابھی نیکسٹ کمنگ لیکچرز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کلچر کے اندر جو بیہیویئرل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں، کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں، اور کس طرح وہ بزنس ڈیسیژن کے اندر اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ابھی تک پڑھا ہے، جو ابھی تک کور کیا، اس کے متعلق جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں ان کو ضرور اپنے کلاس روم کے اندر اور آن لائن سیشن کے اندر ڈسکس کیجیے گا. پہلے کلاس روم کے اندر بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ ان کو پوسٹ کر دیں تاکہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کے ٹیچر کو ہمیں پتہ ہو کہ جناب آپ کی کیا کیوریز ہیں، تاکہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ان کیوریز کو ڈسکس کرنے کی طرف جا سکیں. اگین ایمفسائز کروں گا کہ آپ کی ٹرو لرننگ وہی ہوگی جو آپ خود سے کوشچن کر کے سمجھیں گے، سیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کوشچن کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ صرف ان سلائیڈز کے اوپر رلائی نہ کریں، بلکہ جو چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں ان کو بک کے اندر اسٹڈی کریں، وہاں پہ دیکھیں جو ڈفرینٹ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز دی ہوئی ہیں، ان کو اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد جو کنفیوژنز آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں ان کو یہاں پہ کلیریفائی کرنے کے لیے کوشچن پلیس کریں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.